Okay, so friends, we are back to our Thinking Thursdays, and today we have our speaker with us, Mahesh Sharma ji, right there in the center for all of us to see. And I must say, he's a very handsome looking man. Oh, thank Uh, you so much. let me introduce Mahesh ji. And he has a very मैं वर्क एक्सपीरियंस पढ़ती हूँ महेश शर्मा जी का 10 years in the Indian Army. So I think that's the cherry on the cake that we are starting with. 2 decades of entrepreneurship, experience in the areas of education, self help, and alternate franchise. 4 years of hands on experience dealing with family business stakeholders. Hands on experience of 12 years of personal coaching and mentoring. 3,000 hours of individual coaching experience to 50 plus um, energy psychology and behavioral sciences workshops, 150 plus on personal coaching associates, life coaching practice since 2008. He's appeared on live TV shows in the areas of relationship management, career, and passion development. I like that, passion development. Well, that's be interesting. Around 2 decades of practical experience of understanding and working with human inherent behavior, and one of the pioneer promoters of emotional health and well-being in the country since 2005. I like what he's written, internationally certified life purpose coach. So life coach मैंने बहुत सुने हैं, but life purpose coach that's an interesting label, and I'm sure we're going to learn something about that. EFT practitioner भी है आप, certified emotional intelligence practitioner, certified NLP practitioner, certified timeline therapy practitioner, inherent temperament expert, which is our subject today, Yeah. which is what we are going to hear from Mahesh Sharma ji. He is also the co-founder and associate mentor of SARTRAC Global. I don't know much about that, but you'll have to enlighten us on that. And he's also the chief mentor and founder of Know Your True Self Research Academy. Um, so Maheshji, welcome to the Thinking Thursday. And like you just told me that you have a feeling Friday, so I welcome the feeling and the thinking together. And I Wow. think we're going to really learn a lot from you today. So welcome all my wonderful people here, and of course Mahesh Sharma ji. Mahesh Sharma, the Thank you. floor is yours. And are you going to share a PPT or no? Yes, I'm going to share. I will do both things, interacting with you and sharing the PPT All also. right. So I'll just make you the co-host so that it's easier for you to share. Yeah. Okay. And then of course you can go ahead. So Yeah. yeah, so Mahesh is our, you already are co-host now, so you can also share your PPT, and once again welcome. Thank you so much. Right. Just checking. Thank you, Tripti. Thank you so much for this introduction and inviting me into this wonderful Thinking Thursday, जिसने मुझे याद दिला दिया फीलिंग फ्राइडे का एंड दैट्स वंडरफुल. सो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपने फॉर्मली पढ़ा है, मैं थोड़ा सा उसको इनफॉर्मल वे में आपको बता देता हूँ. मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है, वैसे मैं डायराइट हूँ और वहीं पर मैं रहा और उसके बाद मैंने पहला ही स्टेप यानी आफ्टर 12th फर्स्ट ईयर के बाद ही मैं आर्मी में चला गया था. तो आई वाज यू नो जितनी वो जवानी है ना वो सारी आर्मी में निकली है मेरी. So by the age of 28, 29, I came back after 10 years of service. और उस आर्मी के बीच में ही मेरा एक यूरेका मोमेंट आया था जिसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, आप ये कह सकते हैं, in 1994 when I started thinking towards this side that why we do what it is all about and these kind of questions. जो आप लोगों को पता है बहुत सारे लोगों के साथ ये टाइम आता है लाइफ में जब उसको ये एनलाइटमेंट यू कैन से एक फ्लैश होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है. और वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद वो रुकी नहीं. यहाँ पर आके फिर मैंने एज ए सिविल लाइफ के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, बट एक फौजी के लिए सिविल लाइफ में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है. बट आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट. लेकिन इन 2005 आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे वो करना चाहिए जो जिसका जिस जिसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड पैशन. जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट. और जो मेरी कॉलिंग है अंदर से.
and it came out that yes, I understood something, I found something, so why not share it with other people? Why not share this particular phenomena of understanding self and understanding the world around us, so that we can live our life better and with happiness and with prosperity and meaning. And in 2008, when I thought कि yes, it is now, एक पीछे से कहते हैं ना, एक जोर आता है कि yes, now I should go into full time. So 2008 में know your true self. तो ये नाम दिमाग में कहाँ से आया है? ऐसे हम लोग बैठे हुए थे. I was talking to my wife. I said कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए? And he said कि तुम्हारे दिमाग में क्या नाम आ रहा है? घूम फिर के एक ही नाम आता था कि know your true self. Because what I found out is, unless and until we know ourselves, we can't know anything else. So everything starts from self. आज जो टेम्परामेंट का वर्कशॉप है वो भी सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है. सब कुछ शुरुआत खुद से होती है. तो इसके अलावा कोई नाम सूझा नहीं. तो वी पुट इट लाइक नो योर ट्रू सेल्फ एंड नो योर ट्रू सेल्फ रिसर्च एकेडमी, बिकॉज इट्स अ जर्नी. और वहां से 2008 से ही वो वर्कशॉप स्टार्ट हुई, वो शेयरिंग स्टार्ट हुई, और एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसको बोला गया महक. महक इज MEHAC, दैट इज मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, एंड दैट इज रनिंग फॉर द लास्ट 12 years. और जहां पर 200 से ज्यादा वर्कशॉप्स इमोशनल वेलनेस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर हम लोग कर चुके हैं. एंड एंड दैट्स अ जर्नी जो हर दिन एक नई चीज लेके आती है, हर दिन एक नया उत्साह लेके आती है. बिकॉज एवरी डे the new person in front of you, or the same person is on the different level. So हर चीज नया दिखाई देता है. आज आप सबके साथ यहाँ इस थिंकिंग थर्सडे में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, दिस इज अ न्यू लेवल. बिकॉज आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरी वो दिल की गहराइयों से निकली हुई चीज है, जो पिछले 20 सालों से जिसने मेरी लाइफ के अंदर जो चेंज किया है. so सुनने में बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन जो चेंज किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसको मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ. सो थैंक यू फॉर दैट अगेन तृप्ति जी, फॉर यू. वर्षा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, थैंक यू फॉर हर. मे बी शी विल जॉइन सून. सो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं आज वो है टेम्परामेंट्स. एंड टेम्परामेंट इज, अगर आप बाय डिक्शनरी वर्ड में जाएं, टेम्परामेंट इज द बिहेवियर सेट वी आर बोर्न विथ. ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारे साथ बचपन से आती हैं, यानी हम पैदा उसके साथ होते हैं. दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट बिहेवियर. ये डिफरेंट क्यों है पर्सनैलिटी से, और इस पर इतना फोकस क्यों नहीं है हमारा, वो भी मुझे जब पता लगा तो आई वाज शॉक्ड. आज जब भी मैं इस चीज को लेके लोगों के पास जाता हूं, वेदर इट्स अ कॉर्पोरेट और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पीपल लाइक इंडिविजुअल्स, when they attend the workshop, which is a full 3-day workshop or 2-day workshop, when they attend the workshop, they say, इसको तो स्कूल्स में होना चाहिए, इसको तो टीचर्स को पता होना चाहिए, इसको तो करिकुलम में डालना चाहिए. Everybody says like this, and I say, I know that these are so basics कि हम इसको भूल ही जाते हैं. कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल जमीन से उठी हुई चीजें हैं जो होनी चाहिए. इसलिए मकसद क्या बना 2010 में, एटलीस्ट 1 person फ्रॉम अ फैमिली शुड नो दिस. कम से कम एक इंसान फैमिली का इसको जानना चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन इन वर्कशॉप्स नॉर्मली बोथ हस्बैंड वाइफ नेवर कम. सो अगर आप भी नोटिस करेंगे तो किसी एक वर्कशॉप में दोनों हस्बैंड वाइफ का होना बहुत बड़ा मिरेकल है, कि दोनों साथ में बैठकर उसको एंजॉय कर रहे हैं. खास तौर पे दोनों नहीं होते हैं, लेकिन एक आता है. और मेरे यहाँ भी ये रिकॉर्ड रहा कि सारी वर्कशॉप में एक आता है, बट वो जो एक आता है ना, वो पूरी फैमिली के अंदर फर्क डालता है. दैट आई हैव सीन, आई हैव रिकॉर्डेड इट विद माय वर्कशॉप्स एंड ऑल. सो आई एम आल्सो सीइंग दैट यहाँ पर अगर कोई कपल है तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत आभार, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग 2 people, बट वेरी रेयर स्पीशीज टू फाइट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. बट अब क्या होता है, मेरी वाइफ बहुत मेरा क्या बोलते हैं उसको, फायदा उठाती हैं. जब मैं वर्कशॉप करता हूँ तो वो साथ में बैठी रहती हैं, और एवरीथिंग शी हियर्स, और हर चीज का वो पूरा बेनिफिट लेती हैं. बट जब मैंने शुरू की थी उस टाइम पर ये बिल्कुल नेसेंट था. तो ये टेम्परामेंट है क्या, कैसे काम करता है, व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर अस, मैं आपके साथ आज जो शेयर करूंगा वो उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग है. लेकिन इतना जरूर है कि आज के बाद हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उसके अंदर और डीप में जाना चाहें, एंड यू स्टार्ट योर होमवर्क ऑन दैट. And one thing I can you can assure you something,
that you may have some questions, because ये ऐसी चीजें हैं जो belief system पे चोट करती हैं, या you say that belief systems के ऊपर आती हैं, sometimes we don't know even कि ये है भी कि नहीं. So you are most welcome to ask questions. So I think हम बाद में 5-10 मिनट question answer sessions के भी रख लेंगे आपके लिए. So Tripti ji, if I'm okay, what time do I have for my presentation? Generally, I think 45 minutes is a good time, and then 15 minutes we can have Q&A. Okay. Yeah. So yeah, perfectly fine. So stay with me for next 40 minutes and let's see what happens. So what is temperament? Temperament is the inherent state. Now, जब भी अगर आप अपने आसपास देखें, आप कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो आपसे डिफरेंट हैं. For example, we see people who are aggressive, more aggressive than us. We see people who are more mellow down than us. We see people who are happy-go-lucky people, like, they are the most happiest person on the earth. And we see people who are very logical, very methodical, very perfectionist. Not audible. Anuradha, am I not audible? I'm audible to everyone. Yes, yes, I am audible. Anuradha, you can check your things, please. At your Sir, end. now you are audible. Thank you, Rahul. So, एक डिफरेंट तरह के लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं, और हम सोचते हैं कि ये डिफरेंट है. ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है, बट कितने डिफरेंट है शायद इतनी डेप्थ में हम नहीं जाते. इसीलिए ये चीजें हमारी इम्पैक्ट होती हैं बहुत सारे फैक्टर्स में, लाइक आवर करियर चॉइस, लाइक आवर रिलेशनशिप्स. मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप स्टार्ट फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. तो एक हम बोलते हैं दूसरे को समझते नहीं है, और ज्यादातर लोगों की बहुत बड़ी कंप्लेन होती है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी. ये एक बहुत बड़ी कंप्लेन लोगों की, मुझे कोई समझता नहीं. नाउ व्हाट इज दिस? समझने का मतलब क्या है, वो आज हम जानेंगे कि समझना कहां से. सो टेम्परामेंट एक ऐसी चीज है जिसको जानने के बाद हमें ये समझ में आता है कि दुनिया में लोग जो है वो सब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं. नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज राइट इन हिज और हर पर्सपेक्टिव. हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव की तरफ से ठीक तरह से दिख रहा है, बट वो जो ठीक है वो क्या है? सो आप इसको ऐसे मान के चलें कि हम सब ने डिफरेंट तरह के स्पेक्टिकल्स डाले हुए हैं, डिफरेंट तरह के चश्मे पहने हुए हैं. अब सोचिए, अगर मैंने ग्रीन कलर का चश्मा पहना है और आपने येलो कलर का चश्मा पहना है, तो हम जब एक व्हाइट वॉल को देखेंगे तो वी मे बी डिफरेंट विद अवर पर्सपेक्टिव, कि मैं बोलूंगा ये ग्रीन है, आप बोलूंगे ये येलो है. And that happens when two people from the different temperaments see the world. Because we don't see the world as it is, we see the world as we are. जैसे हम होते हैं दुनिया वैसी दिखती है, ना कि जैसी दुनिया है वैसी दिखाई देती है. तो ये जो टेम्परामेंट का ये जो पहला चश्मा जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट स्पेक्टिकल, ये है क्या चीज? ये सबसे पहली चीज है आपके और उस इंसान के बीच का पहला दीवार, पहला डोर कह लीजिए, पहली वॉल कह लीजिए, वो है बिहेवियर की वॉल. जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसको एक बार देखने के बाद, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, या उसका चलना, उसका चाल ढाल, उसके कपड़े, उसका देखने के बाद उसका सेकंड जो इंटरेक्शन है वो है उसका बिहेवियर, राइट? जो सबसे पहला है. और उसके बाद आती हैं उसके नीचे की चीजें, लाइक उसके इमोशंस, उसका कैरेक्टर एंड अदर. लेकिन जो ये बिहेवियर है, ये फर्स्ट लेयर है जहां पर आप उससे इंटरेक्ट करते हो. और ये जो इंटरेक्शन है, ये सबसे पहला चश्मा, हम इसे बोलेंगे द फर्स्ट स्पेक्टिकल भी है. सो आज हम उसी स्पेक्टिकल की, उसी चश्मे की बात करेंगे, उसी गॉगल की बात करेंगे कि आखिर वो है क्या. और वो खाली चश्मा नहीं है, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं. यू नो दैट वो कॉन्टैक्ट लेंस की तरह काम करते हैं, बिकॉज दे आर इनसाइड ऑफ अस. हमें दिखता भी नहीं है कि हमें चश्मा पहना हुआ. सो मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं एक पिक्चर से, so that we can start with not with a theoretical thing, but a very pictorial way of seeing this. So just sharing with you the picture. If you can see the just a minute. Picture is, yeah. Okay, am I able to show you the picture? आप देख पा रहे हैं पिक्चर को? Okay. Yes, fine. it is seen. Yeah, this is very nice. ऐसे कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, वो पता लग जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. थैंक यू सो मच. देखिए, ये है पिक्चर आपके सामने, और मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे और रिलेट करें ये हो क्या रहा है.
आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल्स भी होंगे जो बहुत अच्छी तरह पहचान गए होंगे क्या हो रहा है, उनके ऑफिस में चलता रहता है। लेकिन ये हो क्या रहा है, एक मीटिंग हो रही है, राइट, एंड वन पर्सन इज शोइंग समथिंग, इज प्रेजेंटिंग समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। कैन समबडी एक्सप्लेन? कुछ अपने आप बता पाएंगे कि क्या चल रहा है, प्लीज? Some people are interested, some are just not interested. Not interested. Some are interested, some are totally People are sleeping. sleeping. ओके, सो ये सेकंड स्टेप पे आ गए आप। पहली चीज ये चल रही थी एक मीटिंग जिसमें एक स्पीकर है, एक प्रेजेंटेशन कर रहा है, उस प्रेजेंटेशन का नाम है 50 ways to make your presentation more exciting. Think about this. ये है प्रेजेंटेशन का नाम, राइट? और ये हमसे भी रिलेट होता है। ये जो वर्कशॉप, ये जो सेमिनार ये जो चल रही है ना सेशन, ये भी ऐसा ही है, राइट? 50 ways of make your presentation more exciting। और वो जो शख्स हैं, आप सोच सकते हैं कि वो कितने कितने मेटिकुलस होंगे जिन्होंने ये स्लाइड बनाई होगी, जिन्होंने लिखा होगा 50 ways to do that presentation exciting। और स्लाइड नंबर कौन सा चल रहा है देखिए, 67. लेट्स वॉक थ्रू स्लाइड नंबर 67, राइट? सो कम से कम 100 स्लाइड की प्रेजेंटेशन होगी। कितने मेटिकुलस होंगे जिन्होंने बनाई होगी ये स्लाइड, यानी कितने पैशनेट भी होंगे, और दे वांट टू टीच सम पीपल आल्सो। बट व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑडियंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग टू सी रादर देन दिस जेंटलमैन, राइट? सो सी दैट। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं और आप जरा सा उसके बारे में बताएं। ये जो फर्स्ट शख्स हैं, ये क्या कर रहे हैं आपके हिसाब से? He's taking notes. Who is taking notes? संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, The first वंडरफुल step. वंडरफुल। Who is taking notes and he may be thinking कि यार आज तो मजा आ गया, ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। Now it's very good, exciting, and he is very engrossed. And what about this gentleman? Bored. बोर्ड भी बड़ा अंडररेटेड वर्ड है, मतलब he is just knocked Sleeping out, literally. Yes, Not he's just boring. not interested. not just knocked down कि यार ये बस नींद आ गई, बहुत अच्छा। Okay, just about this, the third person, see this, what is he Reading doing? paper. Reading the newspaper. Reading the newspaper, or maybe ducking himself and showing to other people that I'm not interested, so don't bother me, I'm busy in my stuff. Involved in something else. Yes, Mm. and what happened to this person, this gentleman? He is very interesting character. See this, क्या हो रहा है इनके साथ? Yes, yes. Think about it. बहुतों के साथ होता है ऐसा। He's lost in his own thoughts, it seems. बस दिखा रहा है कि देख, सोच रहा है, सुन रहा है। Yes, he's lost. You're right. Word is lost is good, and he may be thinking, यार कहाँ से ऐसे स्पीकर्स को उठा लाते हैं? I don't know what is happening. क्या चल रहा है? मैं ये 50वीं वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, सेम चीजें बोलते हैं, nothing happens, but he's so, this thing. Now think about it. Think for a moment. ये जो आपने चारों चीजें देखी, ये एक ही प्रेजेंटेशन में हो रही है, एक ही शख्स के साथ हो रही है, जो इतना मेटिकुलस था, जिसने अपनी पूरी पता नहीं कितनी रातें लगा के ये प्रेजेंटेशन बनाई होगी, एंड उसके साथ हो रही है। अब सोचिए आप दरवाजे से बाहर है, अब आप दरवाजे से बाहर एक रिपोर्टर हैं चैनल के, जो इस मीटिंग को कवर कर रहे हैं, हाई स्टेक मीटिंग हो रही है यहाँ पर, आप उसको कवर कर रहे हैं, और बाहर से जो भी निकल रहा है आप उनसे पूछ रहे हैं कैसा लगा जी आपको, कैसी थी वर्कशॉप, क्या एक्सपीरियंस है आपका, डू वांट टू शेयर समथिंग? ओके फाइन। सो दिस जेंटलमैन व्हेन ही गोज आउट, व्हाट ही विल टेल, सॉरी दिस वन, क्या बोलेंगे बाहर निकल के? It was fantastic. Really interesting. Really interesting, Very informative. very informative, ये वर्ड यूज करते हैं हम, मे बी लाइफ चेंजिंग, ही कैन यूज द वर्ड लाइफ चेंजिंग। कमाल हो गया, आज तो मुझे पता नहीं क्या क्या मिल गया इसके अंदर से, आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड अबाउट दैट, ये बात बोलेंगे बाहर जाके। और व्हाट ही इज गोइंग टू से, ये क्या बोलने वाले हैं? The speaker never spoke. हैं? The speaker never spoke. He probably never heard anything. Yes, it was so boring that I just fell asleep with the first slide came on. तो मुझे समझ में आ गया कि मीटिंग ऐसी होने वाली है, I just slept. So it is so boring. Okay, fine. And what is he going to tell this gentleman? Sir, I kept waiting for the meeting to get over. Yes, because कुछ ऐसी चीज थी नहीं उसमें, कुछ ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था, Interest नहीं आ रहा था. इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा नहीं आ रहा था इसमें कि जो मुझे लगे कि कुछ मतलब का है। एंड व्हाट ही इज गोइंग टू से, दिस जेंटलमैन, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है ना, ये क्या बोलने वाले हैं? सॉरी,
ये कुछ इंटरेस्टिंग ही बोलेंगे। He may say that हाँ interesting था कुछ। नहीं, he'll say, अच्छा ये भी था क्या? और ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा ही था जैसे पहली मीटिंग्स थी, बहुत मैंने अटेंड की हैं, दिस इज ठीक है, ओके, इट्स ओके, टाइम पास था, इट्स ओके, फाइन। नाउ थिंक अबाउट, अब जब बाहर प्रेजेंटेशन की आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो वो जो 4 रिस्पॉन्सेज आए हैं आपको, वो एक ही प्रेजेंटेशन के आए हैं, एक ही प्रेजेंटेशन, एक ही स्पीकर, एक ही तरह की स्लाइड और एक ही टाइम, इन सब का ये 4 रिस्पॉन्स। अब आप सोचिए वेरिएशन है कहाँ, स्पीकर में या लिसनर्स में? लिसनर्स। दैट्स व्हाई आपने बहुत बार सुना होगा कि सीखने वाला बच्चे से भी सीख जाता है, और ना सीखने वाले के सामने भगवान भी बैठा हो ना तो उससे भी नहीं सीखेगा। नहीं सीखता है। That's where it comes, and this सब्जी थोड़ी कम करना, तुम खा लेना थोड़ा सा। जब ये स्लाइड मेरे सामने आई थी ना, उस टाइम पर वो कहते हैं ना यूरेका मूवमेंट होता है, मेरा एक यूरेका मूवमेंट हुआ था। नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई सम स्पीकर्स आर नॉट एट ऑल एक्साइटिंग फॉर मी, जबकि दूसरे लोग उछल रहे हैं उसमें और ये कह रहे हैं यस वी कैन डू दैट एंड वंडरफुल इट्स गॉन। अब मेरे लिए बहुत अजीब सा लग रहा है वो, व्हाई? स्पीकर में कुछ गड़बड़ है? नो। कहां पर है? बिकॉज वी सी द डिफरेंट एज वी सी द वर्ड एज वी आर, नॉट एज इट इज। तो उस स्पीकर से जो रिलेट कर रहा है, यानी उस स्पीकर से जो रिलेट कर रहा है उसके लिए तो ये वर्कशॉप बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। जो रिलेट नहीं कर रहा है उसके लिए बेकार है। इसलिए रिलेटिबिलिटी फैक्टर इज द नंबर 1 फैक्टर व्हेन यू लर्निंग कम्स। इसीलिए बोलते हैं लाइकेबल होना चाहिए। जब टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और जिन टीचर्स के साथ बच्चों का कॉम्बिनेशन बन जाता है उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है, जिनके साथ नहीं बनता उनको अच्छा नहीं लगता है। सो नाउ दिस थिंग taught me another lesson, that it is not about what is being said, it is about what we took from what is being said. जो कहा गया है उसको मैंने कैसे लिया है उस पर डिपेंड करता है, और इसी चीज को समझते हैं और गहराई से कि आखिर ये जो चीज आती है ये आती कहां से। सो लेट मी शेयर विद यू समथिंग एल्स। अब आपने देखा एक ही सेमिनार, एक ही जगह पर ये चीजें चेंज होती हैं। नाउ ये कहां से आ रही है और इसको समझना क्यों जरूरी है, तो ये 2 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, राइट? So if I ask you what is personality, can somebody give a view, just view कि personality है क्या? Personality क्या होती है? Personality is our persona, what we demonstrate in outer environment, and temperament is our inside, what traits we are having inside us. And this is my opinion. Absolutely, बहुत ही छोटे शब्दों में और बहुत clear. Anybody else want to share? बहुत important फर्क है इन दोनों में। Personality is how you conduct yourself, and temperament is the underlining conviction that you follow, which makes your personality. Yeah. Personality is what is visible to another person. Temperament is the inherent. Okay. So I'm using the 2 words. Can we say that temperament is basically our reaction to situations? That governs our temperament. Okay, so yes, So, we can also to add that personality is who we are and temperament is what we do. Wonderful, wonderful, that's good. आप जो भी बोल रहे हैं उसको मैं एक नटशेल में डालता हूं। मैं पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट की डिफरेंस की बात कर लेता हूं, सो दैट आज आपका ये क्लियर हो जाए कि पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट में फर्क क्या है। एंड फॉर वंस एंड ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डीलिंग विद, सो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देयर आर 7 डिफरेंसेस आई हैव नोटेड डाउन, and these are something which came from experience also. So understand this thing. First thing, we are talking about personality and temperament. And ध्यान रखिएगा, पर्सनैलिटी की जब बात होती है ना तो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत जल्दी दिमाग में आता है पर्सनैलिटी कैसी है इसकी। We are talking about branches of the tree जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं। Now we are going inside the tree, right? So बात समझें इसको। Personality is what we are now and what we project to others. जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो आपकी क्या चीज सामने आएगी? पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट? पर्सनैलिटी। यस, मेरी भी पर्सनैलिटी आपको सामने है, टेम्परामेंट नहीं है। टेम्परामेंट तो मेरे घर वालों को पता होगा, राइट, कि टेम्परामेंट क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट करते हैं हम दूसरों को वो है पर्सनैलिटी, और टेम्परामेंट क्या है? प्रोजेक्ट टू सेल्फ, दैट इज टेम्परामेंट, राइट? So if I ask you honestly, tell me, are they same?
what we project to others and what we project to us, are they same? So they are different. No, Yeah. they're different. They are absolutely different. Totally Right? different. Totally different. So second option देखिए, is the outer makeup of the inner self. Personality outer makeup है inner self का, और it is the inner self itself. Temperament inner self है और personality उसका outer makeup है. Okay. अगला देखिए, is the so we are coming to nurture and nature also. Is the result of nurture. Personality is the result of nurture, and temperament is our inherent nature. Can somebody want to throw the light on these two? Is the result of our nurture and is the result of our nature. How we have been brought up, how we have been groomed is the first one, is personality. Personality. And of course, second is inherent nature, so of course we know. Learned behavior, the first one. Personality, and, yes. And inherent natures which we are carrying. Yes, which you are carrying, right, from birth. That is called temperament. So that's wonderful. Now it is a nurture. अब nurture का कितना रोल है, nature का कितना रोल है, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन चल रही हैं, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बात चल रही है. But what I have found out is 65 to 70% is the hand of temperament in your behavior, and only 30 to 35% is learned behavior. क्योंकि आप जब जो अंदर से, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक आम के पेड़ का बीज बोया है तो आपको एक पेड़ जो मिलेगा उसकी शक्ल सूरत आप उसको काट छांट के पीपल के पेड़ जैसा बना सकते हो, लेकिन इनहेरेंट नेचर आम के पेड़ का ही होगा, राइट. सो वो जो आपका जो अंदर का जो मटेरियल है ना, जो आपको डीएनए से मिला, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उसका जो उसके बेस के ऊपर पर्सनैलिटी बनती है. सो सी दिस. Now this is very important, and I hope you all people are on that level that you will understand. There are finest difference here. Personality can be seen as mind of our overall appearance, and temperament can be seen as heart of our overall appearance, right? So can somebody want to throw some light on this? So I'm just stopping the screen and sharing with you, because this is very interesting and very important to understand. Mind means that what you are actually modulating yourself, what is dictated to you by the circumstances or by the environment, and the next one is of course natural. That is how I see it. Wonderful. That's great, Sanjeev. Anybody else want to share? Mind. First one is it is thought over, and second one it is more by instinct. Absolutely right. Anybody else? Just want to add here, maybe mind can calculate, right? We can portray ourselves the way we want to portray. Like our friend के पास कुछ और behavior होता है, and you portray like a carefree person, और meeting में कुछ और हो सकता है. And heart is basically our emotions. जो अंदर है, that will come out. Absolutely, absolutely. One more. So one is what you think, and the other is what you feel. You're right. Thinking Thursday and feeling Friday. You're right. You're right. And that's where the difference comes. Mind को आपने कभी सुना है mind to mind connection है मेरा उसके साथ, या आपने ये सुना है heart to heart connection है? Heart to heart. Heart to heart. क्योंकि माइंड टू माइंड कनेक्शन जरा डिफरेंट वाला कनेक्शन होता है. माइंड टू माइंड कनेक्शन होते तो हैं, लेकिन वो कनेक्शंस बड़े अजीब से होते हैं. लेकिन कभी भी आप किससे कनेक्ट होते हो ना, जब आप किससे मिलते हो या किसी के साथ आपका जुड़ाव होता है, तो वो कहाँ से होता है? क्यों बोलते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन? बिकॉज हार्ट कांट बी मैनिपुलेटेड. हार्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप माइंड को जितना चाहे मर्जी मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट? और हार्ट में से जो चीज निकलती है वो उसी को हम कहते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बात करते हो, आप माइंड से कितना भी सोचते रहो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि हार्ट तक बात नहीं पहुंचती. आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, वंडरफुल, बट इफ योर हार्ट इज नॉट सेइंग यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू विल नेवर डू दैट. सो ये जो माइंड है ना, ये है 35%, वो जो हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन हार्ट जो है वो वहां पर आता है. मैंने इसलिए वो बंद की, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी था. आई एम अगेन पुटिंग माय स्लाइड्स अगेन, Okay, so mind. Other देखिए, साथ है सिर्फ. Is influenced by outer factors, or temperament is not influenced by outer factors. Outer factor कैसे? किस जगह पैदा हुए, किस कंट्री में हुए, कैसे माँ बाप है आपका, स्कूलिंग कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सब कुछ आपके आउटर टेम्परामेंट को
इफेक्ट कर पाता है। इसीलिए आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कभी नाम सुना हो, आप में से बहुत से लोग सुना होगा अपने नाम, लेकिन क्या आपको पता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कंप्लीट ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है? इट इज नॉट अबाउट कि एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, बन ही नहीं सकता वो, बट कैन यू एक्सप्लेन दैट कि आपको लगता है कि एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट बन सकता है अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो? जस्ट थिंक अबाउट इट। No, sir. No, no, sir. सोच के देखिए। To some extent, it can be trained, but I think when a person is by himself, he would come back to his original personality. Yes. He's reacting differently to stimulus. Absolutely. So, Like somebody's profession may demand him to be an extrovert, but when he's by himself, he might again be an introvert. Absolutely. रबड़ की तरह आप खींच के रखते हैं तो आप थोड़ी देर तक खींच के रख सकते हैं, जब छोड़ देते हैं तो अपनी जगह पे आ जाता है, राइट? तो जो अपनी जगह पे आता है वो टेम्परामेंट है। नाउ थिंक अबाउट इट, इसी को हम लेके चलते हैं अपने, जब बच्चों की बात करते हैं, हमारे बच्चे जब होते हैं वो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शांत होते हैं और कुछ बच्चे बहुत आउटवर्ड्स होते हैं। हमें लगता है अपने बच्चों को पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देके शायद हम उसे एक सोशल बना दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। आगे देखते हैं। ओके, वी कैन चेंज अवर पर्सनैलिटी, मे बी modify it, redesign it, but we can't change our temperament. हम अपने टेम्परामेंट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको चेंज करना भी नहीं चाहिए। Now it should not be changed, because the moment you try to change your temperament, you will not live your life, you will live a borrowed life. अगला देखें, it gives us temporary success. जो पर्सनैलिटी है वो आपको टेम्पररी सक्सेस देती है, और टेम्परामेंट जो है वो आपको रियली में ट्रू हैप्पीनेस देता है, सक्सेस देता है टेम्परामेंट, क्योंकि वही कैरेक्टर बनाता है आपका। एंड दिस इज द लास्ट वन, इट मे हेल्प अस इंप्रेसिंग अदर्स एंड क्रिएटिंग अ फैन बेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। आप एक शॉर्ट टाइम के लिए अपना फैन बेस और क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप टेम्परामेंट हेल्प्स अस इन एस्टेब्लिशिंग अवर कैरेक्टर। So there are 7 or 8 differences I'm shared with you with personality and temperament. Now I ask you a question, which is more important, personality or temperament? Temperament. Temperament. And where our focus is as a society? Personality. It's a huge gap, and that's why you understand why people say it should be in the curriculum. शुरू से ही हम पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं, और इतना फोकस करते हैं कि हम पत्तों पे इतना फोकस करते हैं कि जड़ें भूल जाते हैं, राइट? सो टुडे व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू इज, पत्ते तो जड़ों से आते हैं। अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो उनको पानी देके कुछ नहीं होगा जब तक जड़ों पे काम ना किया जाए। दीज आर द रूट्स, टेम्परामेंट आर द रूट्स। अगर ये नहीं समझ पाए तो हम कभी दूसरों को नहीं समझ पाएंगे, और ये कंप्लेन हमेशा रहेगी, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, कोई मुझे समझता नहीं है। कैसे समझेगा? जब वो खुद को नहीं समझे तो आपको कैसे समझेगा? सो दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट। सो ओके, एक पिक्चर के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये फाइनली बताता हूं कि पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट के बीच का फर्क क्या है। और बहुत ही अजीब सी पिक्चर है ये, लेकिन जानबूझ के ऐसी रखी गई है। सी दिस, सॉरी, ये इसको आई करता हूं, आई एम शेयरिंग विद यू टेम्परामेंट। सो आज टेम्परामेंट, ये देखिए 2 पिक्चर्स है आपके सामने, सेम टू सेम कॉपी है। ये मत पूछिएगा कि मैं पूछूं इसमें डिफरेंस क्या, आप देखना शुरू करेंगे क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, कॉपी है, राइट? दोनों कॉपी हैं और दोनों में व्हाइट पेंट है। क्या आपको ऐसे कोई डिफरेंस दिखता देखने में? ढूंढिएगा मत, है भी नहीं, बाय द वे, है ही नहीं, राइट? लेकिन जब तक मैं आपको ये ना बता दूं ये वुड है और ये मार्बल है, राइट? अब डिफरेंस दिखता है, आप डिफरेंस कर पाते हैं, राइट? कि एक का मटेरियल वुड है, एक का मटेरियल मार्बल है, दोनों देखने में सेम है। द सेम थिंग हैपेंस। ये देखिए, ये जो पहला पार्ट है ये वाला, ये क्या है? सॉरी, पर्सनैलिटी। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये है पर्सनैलिटी, जिसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाते कौन कैसा है। और ये जो सेकंड पार्ट है वो है टेम्परामेंट, जो है मटेरियल। हम किस मटेरियल के बने हैं वो है टेम्परामेंट, और क्या बनाया है उससे वो है पर्सनैलिटी। सो दिस इज वंस फॉर ऑल अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी। और जब भी हम अभी बात करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परामेंट्स, नॉट पर्सनैलिटी, राइट? सो दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स। सो आई एम नाउ गोइंग टू शेयर कि टेम्परामेंट क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि मैं आपको टेम्परामेंट के उस
चीज पे ले जाऊं कि टेम्परामेंट थ्योरी क्या है, क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। गो लिटिल बिट फास्ट, क्या क्या करता है इन्फ्लुएंस। देखिए, टेम्परामेंट आपकी सोने की आदतें, पढ़ने की आदतें, ड्राइविंग स्किल्स, ईटिंग हैबिट्स, कैरिंग आउट ऑर्डर्स, लीडरशिप स्टाइल, फ्रेंडशिप्स, पास टाइम एक्टिविटीज, पेरेंटिंग स्टाइल, सिचुएशन हैंडलिंग, मैनेजिंग सेल्फ, कम्युनिकेशन स्टाइल, बिहेवियर पैटर्न, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, इन सब पे टेम्परामेंट का जबरदस्त इफेक्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, one of the best qualities when you are talking about leadership in home or at work is the ability to get along with others. दूसरों के साथ मिलकर चलने की आपकी योग्यता, इस पे सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है टेम्परामेंट का। पर्सनैलिटी हैज वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर दैट, राइट। सो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इस इंपॉर्टेंट चीज को नजरअंदाज कर पाते हैं बिकॉज हमारा चश्मा हमें देखने नहीं देता जब तक कि वो चश्मा उतरेगा नहीं। तो वो किस तरह के चश्मे हैं, वो क्या है, हमारी आंखों के सामने उस पर बात करते हैं बहुत सारी। सो हियर इट इज, देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अबाउट, क्योंकि इंसान को जानने के लिए ना, हम शुरू से इंसान को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो आज से नहीं, हजारों सालों से एक दूसरे का बिहेवियर समझने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो अभी से नहीं, हिपोक्रेट्स के टाइम से 2400 साल पुरानी थ्योरी है जिसको बोलते हैं 4 टेम्परामेंट थ्योरी। ये थ्योरी हर एक बिहेवियर थ्योरी का बेस है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चल रही हो, चाहे वो किसी भी कॉर्पोरेट में चल रही हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चल रही हो या हम समझ रहे हो, उसका सबका बेस कहां से आया है? 4 टेम्परामेंट थ्योरी से। और ये 4 टेम्परामेंट थ्योरी क्या है? पूरे वर्ल्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी लोग हैं उसमें 4 तरह के ही लोग होते हैं। यानी लोग तो 700 बिलियन है, लेकिन 700 बिलियन लोग हैं, लेकिन आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे, राइट। किस तरह के? 7 बिलियन है, आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। कैसे? फर्स्ट टेम्परामेंट, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी आर वन ऑफ देम थिंग। फर्स्ट टेम्परामेंट इज द पीपल हु आर हैप्पी गो लकी पीपल. So if I use happy-go-lucky kind, they are always happy, they are excited. When they come in the room, they bring the light in, and they are, very good sense of humor. They talk a lot. They are very, very easily, उनको identify किया जा सकता है। जहां से ज्यादा आवाज आ रही हो, जहां से ज्यादा आपको excitement मिल रही हो, that person are there always. These are called the first temperament. और ये कहां से निकल के आ रहा है? आपके bodily fluid कौन से ज्यादा होते हैं उसकी वजह से आपका behavior बनता है। That was a previous theory. So first temperament is called, in Latin it is called sanguine, जहां पर blood ज्यादा होता है। That's why they are so excited. ठीक है ना? Sunshine personality जिसे बोलते हैं, वो that is the first temperament called sanguine. लेकिन उसको observatory platform में हमने क्या नाम दिया? Popular. So they are popular people. So popular temperament we call it. Popular temperament, they are always popular everywhere. घर में, society में, कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, दे आर ऑलवेज पॉपुलर, राइट। जैसे जैसे बात करता हूं, अपने अपने दिमाग में लाते रहिएगा, आपके घर में कितने हैं, क्या खुद हो आपके उसके अंदर क्या। सेकंड टेम्परामेंट इसका पूरा ऑपोजिट है, और वो है वेरी डीप परफेक्शनिस्ट और परफेक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेंशियस पीपल, वेरी इजीली हर्ट पीपल, क्या बोलते हैं उसको, जेन्युइन प्रोन, जीनियस प्रोन पीपल। ये ऐसे वो लोग हैं जिनके अंदर वो परफेक्शनिस्ट का बीज है, यानी दे आर वेरी सीरियस पीपल, पर्पसफुल पीपल। दे आर कॉल्ड इन लैटिन, दे आर कॉल्ड melancholy, right? Melancholy people, and we call it observatory platform is perfect. So they are perfectionist people. So think about those people जिनको चार्ट, ग्राफ्स और डिटेल में बात करना अच्छा लगता है, जिनके हर काम बिल्कुल ठीक होते हैं, घर से लेकर ऑफिस तक एवरीथिंग इज पैक्ड क्लीन होता है। डर्ट्स उनको बहुत बुरी लगती है, डर्ट के चीज भी, और हर चीज अगर करीने से ना रखी हो तो काम भी नहीं हो पाता उनसे। दे आर वेरी परफेक्शन ओरिएंटेड, दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू फर्स्ट टेम्परामेंट कॉल्ड पॉपुलर, सेकंड इज कॉल्ड परफेक्ट। द थर्ड टेम्परामेंट इज व्हाट? दे आर द पीपल हु आर गो गेटर्स, गो गेटर्स लाइक चीजों को आने की वेट नहीं करते, दे गो देयर एंड टेक द थिंग्स, अपनी चीजें लेते हैं, वो वहां से वो चीज ग्रैब करते हैं। सो दे आर गो गेटर्स, दे आर बॉर्न लीडर्स, they are doers, and they are the people who we call the most aggressive ones, who give orders, who get the things done. In Latin we call them choleric, and observatory platform पे हम क्या बोलते हैं? Powerful temperament.
So those are the powerful people. If you remember, you can find it everywhere, in your home, in your society, and in your workplace. The fourth temperament is a complete opposite to of powerful people. They are calm, cool, collected. They are the most serene people in all the temperaments. They are the person who are very peaceful in nature. They don't make any fuss. They are very easy to get along. They are the easiest getting along people. There's a called, in Latin we are called phlegmatic, and here we call them, observatory platform pe, peaceful temperament. So if you see, we have 4 temperaments. One is popular, second is perfect, the third is powerful, and the fourth is peaceful, right? And we all are from these temperaments. Either the one of them is very prominent, or we are the combination of the 2 temperaments. Now understand this. We call it temperament. तो क्या होता है, जिस तरह का टेम्परामेंट होता है ना, वैसी आपकी फेशियल एक्सप्रेशन भी बन जाते हैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग. फेशियल एक्सप्रेशन भी बन जाते हैं. तो क्या आप फेस से इनको पहचान सकते हैं क्या? सी दैट आप में से कौन कौन ऐसा है जो इस आधे घंटे के अंदर बिहेवियर स्पेशलिस्ट बन गया. लेट्स सी. So I'm going to share with you a interesting picture. See this. And just कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, राइट? देखिए ये 4 तरह के फेसेस आपके सामने हैं और आपके पास 4 टेम्परामेंट्स की बात हुई. लेट्स फाइंड आउट व्हाट यू हैव गॉट. 4 टेम्परामेंट बता दो. 4. अच्छा, कोई रिप्ले कर पाएगा 4 टेम्परामेंट कौन कौन से? First one is perfectionist. Okay. Popular. And last one is happy-go-lucky. Okay, शकुंतला जी, मैं ये नहीं पूछा ये कौन है, मैं पूछा 4 टेम्परामेंट कौन से होते हैं. Okay, happy-go-lucky. Popular, yes. And perfectionist. Perfect temperament, right? And then go-getters who are powerful. Powerful. And then calm, cool वाले peaceful. शकुंतला जी आधे घंटे में बिहेवियर स्पेशलिस्ट हो चुकी हैं, जो चारों तरफ को जानती हैं. और बढ़ते हैं आगे. अब इन चारों में से लेफ्ट साइड पे नंबर 1 कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज पॉपुलर. 1 लाख रुपए के लिए पहला सवाल. ओके, फाइंड आउट. दोबारा से देख लीजिए पहले और दूसरे में, फिर कंप्यूटर जी से बात करते हैं. No. He's aggressive. It looks aggressive, powerful. He looks the first one. Yes, you're right. कंप्यूटर जी देखें क्या चीज है. तू काय खाल्लं? मी पाव सगळ्यांकडे मी पाव देते. 6 पाव आणले होते ना. आता हे बघ ते करते. काय करते? ओके. रामा. So just a minute. तू झालीस वेडी. People are excited here. आधी ते बंद कर सगळं आणि पहिलं ते खा. Okay, fine. I understand that you are excited, but here it is. So the first temperament is powerful. You're right. Absolutely. Who is the second one? Perfectionist. Srija. Wonderful. So computer ji, let's find out. Perfectionist. So हम Thinking Thursday के organizers को बोलते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख points डाल दिए जाएं because that's right. Okay. What about the rest 2? Third temperament. ध्यान से देखिएगा. Go getter, third one. Go getter हो चुका है दीपाली. Oh, sorry. I think it should be a perfectionist because he seems to be having a kind of a smirk on the face. अनु perfectionist हो चुका है. The last one is a happy go-getter. Calm and composed, third one. The third one is melancholy. Melancholy हो चुका है. Second perfect is the melancholy. Okay. Third one is peaceful. And fourth one is happy-go-lucky. Okay. Now see that. अगर आप इन दोनों में देखें तो आप दोबारा देखिए थर्ड नंबर की आंखें कहाँ हैं? दूसरों को देख रहा है. आसपास नजरें हैं, कुछ और देखना है. और फोर्थ इज कंटेंटेड. सो थर्ड कौन से हुए? पॉपुलर. यू आर राइट. Popular people. And the fourth one is peaceful temperament. See about this. So somebody is writing also. So मैं chat देख नहीं पा रहा हूँ. Wonderful. संगीता ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा संगीता.
लेकिन 1 लाख रुपए जा चुके हैं पहले किसी के पास, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो दीज आर 4 टेम्परामेंट्स, पावरफुल, परफेक्ट, पॉपुलर, पीसफुल। और इनको ऐड कर दीजिए आप, इनके साथ कलर्स ऐड कर दीजिए, इनके साथ एलिमेंट ऐड कर दीजिए। यू नो हम 5 तत्वों से बने हैं, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। कैन समबडी शेयर फास्ट 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर। पावरफुल का एलिमेंट कौन सा होगा? Which element? Fire, fire. Fire. Ranika, fire. Yes. Fire. Absolutely fire. That is fire. First और second perfect का टेम्प वो क्या होगा? एलिमेंट क्या होगा? perfect. What? Air. Earth. Earth. Real estate बोलते हैं उसको perfect एकदम। Popular का एलिमेंट? Air. And peaceful का एलिमेंट? Water. Wonderful. You people are great. Within 45 minutes, you are above 75% of people जो लोगों को समझ पाते हैं. Now understand this thing. Fire element ज्यादा है तो आप powerful temperament के हैं. आपके अंदर earth element ज्यादा है तो आप perfect temperament के हैं. आपके अंदर air element ज्यादा है तो आप popular temperament के हैं. और आपके अंदर water element ज्यादा है तो आप peaceful temperament के हैं. Now this is just for a depiction. I'll go and share with you within next 5 minutes because I have got 5-7 minutes only. To the brief intro of all this, right? So brief intro क्या है? देखिए सबसे पहले ये जो पॉपुलर टेम्परामेंट है इसका कलर भी होता है. कलर कौन सा है पॉपुलर का? ऑरेंज. ऑरेंज इज लाइट, सनशाइन पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं. सनशाइन पर्सनैलिटी, ऑरेंज कलर उनका. तो ये कौन होते हैं? एक्सट्रोवर्ट. दे आर एक्सट्रोवर्ट पीपल. यानी जो एक्सट्रोवर्ट इज दोस टॉक अ लॉट, एक्सप्रेस, you know, they have a very good sense of humor. They are extrovert people. They are the talkers. They are the talkers of all. अब देखिए color means that do they use that color more often or they're depicted by that color? Depicted by that color. They also use color, flashy colors, but you know this particular color is not there, but orange are their favorite, right? So talkers, they are talker, they talk a lot. And third is they are optimistic. Optimistic कैसे हैं? हो जाएगा, कर लेंगे, don't worry about that, ऐसे वाले. So ये जो लोग हैं orange populars, they are extrovert, talker and optimist. Okay, now see about perfects. Perfects is the color is gold. Gold is also stable, real things. There is gold color, golden. They are introverts. Introvert people अंतर्मुखी हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं और सोच समझ के बोलते हैं. They are the thinkers. They are the think tank जिसे बोलते हैं ना, वो हैं ये thinkers. And the other thing is they are pessimist by nature. Pessimist means they are not निराशावादी, but they see the life का वो वाला पार्ट जो नेगेटिव होता है उसको पहले देखते हैं, पॉजिटिव पार्ट को बाद में देखते हैं. So they are the perfect people, perfect temperament. Third, मैं ब्रीफ दे रहा हूं आपको. थर्ड है पावरफुल. पावरफुल पीपल का कलर क्या है? ब्लू. ब्लू इज द कलर ऑफ लीडरशिप. ब्लू. They are also extrovert, but they are different extrovert people. They are doers. They are neither talkers nor thinkers more. They are doers. They say, do it right now as per me. So that is their way of doing things. Abhi karna ho isi samay mere mutabik. That is called powerful people. And they are highly optimistic people. They are like, I'll do it. No worry. Main hu na yahan par. Don't worry about that. So these kind of people, they are called powerful people. And the fourth one is the peaceful. The color is green. Peace का color क्या है? Green, right? Water इनका element है लेकिन color है green. और they are also introvert, but they are neither talker nor thinker nor doers, but they are watchers. What we think, what we know about watching, they don't go into action fast. They watch. That what others are talking, what others are thinking, what others are doing, let me watch. Don't disturb me, let me watch. So they are very peaceful, calm, cool, collected people, and they are also pessimistically designed in a way कि इतना कुछ करके होगा क्या? Why people are running after all the things? You know, just relax, chill. Life को जीना है, एक ही life मिली, आराम से रहिए ना. They are these kind of people. So there are 4 temperaments. आप में से खुद को भी किसी ने इन चारों में से पाया होगा जिसमें कहते हैं डोमिनेंट टेम्परामेंट. इसमें एक्चुअली होता क्या है, हम लोग 2 टेम्परामेंट्स के बने होते हैं. तो जितना टाइम आज मेरे पास है ना, उसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ इतना बता पाऊंगा, हम लोग 2 टेम्परामेंट के मिक्स होते हैं. जनरली होते चारों हमारे अंदर है बिकॉज 5 एलिमेंट होते हैं, लेकिन 2 टेम्परामेंट सबसे हाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
Your primary temperament is 60 to 65% of your behavior is your primary temperament, right? And the secondary one is 20 to 25%. And this makes 90%. बाकी जो 10% बच गया उसमें बाकी दोनों टेम्परमेंट आते हैं. So इसलिए हम जब आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को थ्रू अ बैटरी ऑफ टेस्ट एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, वी फाइंड आउट कि आपका जो 65% टेम्परमेंट है वो क्या है, बिकॉज वो सबसे पहला टेम्परमेंट है जो आपको आप बनाता है. That is making you. Now, these are the 4 temperaments. Understand this slide and now think about it. Marriages happen almost 95+% on the opposite temperaments. Now, this is a secret. Right? ऐसा क्यों होता है? चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, यानी चाहे आप ढूंढ के लाए हो, चाहे आपके पेरेंट ढूंढ के लाए हैं, लाएंगे उल्टा ही. ऐसा क्यों? Why? And you just think about your partner and maybe you are nodding. Okay, yes. Elemental balance. Elemental balance. Wow, what a philosophy. कि हाँ जी, भगवान ने भी कह दिया आग है तो पानी जाओ, थोड़ा सा पानी जाना चाहिए, और पता लगा अगर हवा पहुंच गई तो आग और बढ़ जाएगी. अभी कुछ तो तसल्ली देना होगा ना, तो elemental balance. Elemental balance. And you know why it happens? Because there is a reason it happens. Because every temperament has their weak parts. और जो टेम्परमेंट उस वीक पार्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम, राइट? जैसे पावरफुल का वीक पार्ट स्ट्रेंथ क्या है? लीडरशिप. उसका वीक पार्ट क्या है? हैंडलिंग इमोशंस, हैंडलिंग पीपल. ये वीक पार्ट है कि कौन हैंडल अच्छा करता है लोगों को? पीसफुल. तो पावरफुल कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? पीसफुल की तरफ. मैं बोलने वालों को सुनने वाला भी तो चाहिए. सुनता कौन है? पीसफुल. दे स्पीक, दे लिसन. वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. बट यही जो डिफरेंस है ना, जो अट्रैक्ट करता है, शादी के 1 साल बाद बन जाता है रीजन ऑफ महाभारत और व्हाटएवर. सो ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको अगर आप समझ नहीं पाए तो ये आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनैलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री जो बनना चाहिए रिलेशनशिप, उसको वो बिल्कुल ऑपोजिट बना देगा. और यही चीज होती है आपके बच्चों के साथ. बिकॉज व्हेन 2 पीपल मीट टुगेदर विद डिफरेंट टेम्परमेंट्स, बच्चे भी डिफरेंट टेम्परमेंट के होंगे ऑफ कोर्स. सो व्हेन अ पेरेंट इज suppose peaceful and the child is powerful, hell, they don't understand why he is so aggressive. डॉक्टर के पास ले जाओ इसको हीलर के पास ले जाओ, इसको थेरेपिस्ट के पास ले जाओ, ये तो चुप बैठता ही नहीं है. ये तो हमेशा ही हाइपर अग्रेसिव है. हाइपर अग्रेसिव नहीं है. His temperament is different than yours. आपको लग रहा है हाइपर अग्रेसिव. दूसरा, मेरे बच्चे अगर पेरेंट्स अगर पॉपुलर में है या पावरफुल में है, बच्चे पीसफुल में है, सोशल नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करता है, घर में घुस जाता है, जब कोई आता है तो कमरे में चला जाता है. डॉक्टर को दिखाओ, थेरेपिस्ट को दिखाओ, इसका काउंसलिंग करवाओ, इसको सोशलिस्ट बनाओ. नहीं बनाओ प्लीज, बिकॉज उसका टेम्परमेंट नहीं है वो. उसका टेम्परमेंट डिफरेंट है. एंड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू सी देम. क्योंकि हमारी सोसाइटी, ओके, जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हमारी सोसाइटी इन जनरल किस तरफ इंक्लाइन ज्यादा है फेवरेबिलिटी की तरफ से? एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स? Extroverts. एकमात्र जो कहते हैं ना, एक यूनानिमस आवाज आई, एक्सट्रोवर्ट. और आपने देखा होगा जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी चीजें बोलते हैं, राइट? और हमारे टीवी में देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है. प्राइम मिनिस्टर कौन सा, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन सा टेम्परमेंट है? एक्सट्रोवर्ट ही है वो. इन चारों में से कौन से हैं? Powerful भी है. I think he is a mix of both. Powerful and popular. Yes, Powerful and popular. he is powerful and popular mix, right? Powerful and popular. But उनका सारा मंत्रिमंडल, maximum people are peaceful, perfects. समझ रहे हैं? अब आप समझिए बैलेंस कैसे बनता है. लीडर कौन हो रहा है? पावरफुल. बट उसके पीछे मशीनरी कौन चला रहा है? परफेक्ट एंड पीसफुल. दैट इज द कॉम्प्लीमेंट. इसी वजह से बीजेपी यहां तक पहुंच गई है, राइट? लेकिन अगर पीछे भी यही होते तो घमासान मच जाता, राइट? इसीलिए ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है इन ए टीम ऑल्सो, इफ यू आर प्रोफेशनल. घर में भी ये समझना बहुत जरूरी है. ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना टेम्परमेंट्स के अंदर, सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट्स का. कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये नहीं है कि मैं ठीक आप गलत. कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है कि मुझे ग्रीन दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? आप कह रहे हो येलो है, मैं कह रहा हूं ग्रीन है. इट इज ग्रीन 100%, आप कह रहे हो इट इज येलो 100%, एंड वी आर फाइटिंग. जबकि है क्या? व्हाइट. Okay, yes, Srija. Yeah, I was actually applauding this point that you said, but I also wanted to ask you,
ये जो टीम हम बनाते हैं, हम लोग डिस्क का जो यूज करते हैं, इज इट सिमिलर टू दिस? एक्चुअली वहां भी आ रहा हूं मैं। ये जितने भी हम यूज करते हैं, डिस्क हो गया, एमबीटीआई हो गया या एनिग्राम हो गया, ये सारे सिर्फ यूज होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसका जो बेस है डिस्क का वो यही है, लेकिन डिस्क खुद भी यूज नहीं करते, जो यूज करवा रहे हैं वो भी यूज नहीं करते हैं। सो आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन वाइज पूरा डिटेल किया हुआ, लेकिन नोबडी यूजेस इट इन देयर डेली लाइफ्स। दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज ये सारे कॉम्प्लिकेटेड है। डिस्क को भी समझने के लिए आपको दिमाग चाहिए। अगर आपकी 15 पेज की रिपोर्ट बन के आ गई, सोचिए आपका, मैंने टेस्ट लिया कि आपके टेम्परामेंट जानते हैं, और आपके 15 पेज की रिपोर्ट आ गई, कौन पढ़ेगा उसको? पढ़ेगा एक ही टेम्परामेंट पढ़ेगा, कौन सा? परफेक्ट, बाकी समझ नहीं आएगा। तो आपका सारा फेल हो गया प्लान, जो आपने प्लान बनाया था, बिकॉज पढ़ा तो उसी ने जिसको पढ़ना नहीं चाहिए था, बिकॉज वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, राइट? और पढ़ना किसको चाहिए था? पावरफुल को। वो तो पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज दे नो देम ऑल, आई नो इट ऑल, तो मैं क्यों पढ़ूं? तुम पढ़ो ना। That's why these all are, wastage of time. So what I have seen, I have also worked with corporates as a coach, and I found out बड़ी रिपोर्ट्स कभी कोई नहीं पढ़ता है। इसको ऐसा बनाना चाहिए कि चाहे बच्चा भी इस्तेमाल कर पाए। और ये जो इसका प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना है एक छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर पाता है। When you, so this is you can say introduction. When you attend the complete workshop, after that you understand, okay, from tomorrow itself, in the workshop itself, you start understanding people. और 30%, 30% to 40% conflicts in the workshop itself खत्म हो जाते हैं, क्योंकि चश्मा उतार दिया ना आपने चश्मा उतारा तो आपको दिखा, अरे दीवार तो सफेद है, हम तो ऐसे ही लड़ रहे थे आपस में कि व्हाइट है या ग्रीन है कि येलो है, बॉल तो व्हाइट है। सो दैट्स वेयर टेम्परामेंट हेल्प्स। ओके, सो कहां ये हेल्प करता है वो भी मैं आपको बताता हूं, सो दैट वी कैन गो टू द क्वेश्चन सेशन, हाउ दिस इंफॉर्मेशन हेल्प अस। ओके, सी दिस, ये स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। और क्यों इसने मुझे इतना फैसिनेट किया? बिकॉज ये जड़ है। देखिए कहां हेल्प करता है। एज ए इंडिविजुअल आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज द फर्स्ट टाइम यू अंडरस्टैंड सिटिंग देयर, okay, I am different and so as the other people are. So why I am fighting? I am fighting that I am different, I am unique. So other people are also unique, they are different. Second, as a parent बहुत हेल्प करेगा अपने बच्चों को समझने में, उनको राइट डायरेक्शन में ले जाने में। और जैसे मैंने पैशन की बात की थी, जो शुरू में हम बात कर रहे थे, पैशन का बहुत बड़ा संबंध है आपके टेम्परामेंट से, और आप उस टेम्परामेंट को नहीं पहचानोगे तो पैशन तक नहीं पहुंच पाओगे। एज ए स्पाउस, tremendously help you. This will help you in minimize your conflict. As a professional, of course, it will help you to work with the colleagues and all. Okay, so can Anita ji, can you please mute yourself? Anita Rege ji. Sir, we can't hear you. Sir, you are muted. Fine. So as an entrepreneur, जब आप टीम बनाते हैं, जब आप खड़ी करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का भी अपना एक रोल होता है, अपना एक टेम्परामेंट होता है। हर तरह के लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वी कैन नॉट कॉपी somebody's formula to somewhere. Okay, then where it will help as a counselor, coach और healer. अगर आप में से कोई काउंसलर, कोच और हीलर है, उसके लिए ये मैंडेटरी है। What I tell, मैंडेटरी, बिकॉज जो बंदा आपके पास आ रहा है सीख करने के लिए, अगर आप उसको समझ नहीं पाए उस लेवल पे, आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा वो। और कोई भी कोच, काउंसलर, हीलर बिना कनेक्शन के काम नहीं कर पाते हैं। यू आर नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, अगर मोटिवेशनल स्पीकर है तो आपको टेम्परामेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें यू कैन स्पीक एंड पीपल कैन लिसन। बट यू नो व्हाट, बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग सेमिनार्स आर डीमोटिवेटिंग। यू नो दैट सम पीपल गो इनसाइड द सेमिनार, कम आउट डीमोटिवेटेड। कौन से लोग, कौन से होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर? ज्यादातर कहां से आते हैं? पावरफुल, पॉपुलर, एक्सट्रोवर्ट। हाँ, राइट। और उनके सेमिनार में जाते कौन है? परफेक्ट और पीसफुल, एंड दे नेवर रिलेट एंड दे कम आउट मोर डिप्रेस्ड। डोंट गो टू द motivation seminar if you are perfect, powerful. As a human being, the empathy will generate for the first time. Real empathy को generate करने के लिए ये सबसे important tool है, because now you understand how other people feel. And as a spiritual person,
हर एक का पूजा करने का तरीका, हर एक का स्पिरिचुअल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है टेम्परामेंट वाइज. यू विल नॉट बिलीव इट. यू नो, एक टेम्परामेंट होता है, यस आई एम द भक्त ऑफ दिस, सो नोबडी कैन एल्स कम इन माय वे, दिस इज माय स्पिरिचुअल वे. एक होता है अंदर जाना, एक होता है बाहर आना. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज. एंड कहाँ हेल्प करता है फॉर लास्ट, सो दैट वी कैन कम टू दैट. मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर देगा, खत्म नहीं करेगा, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, मिनिमाइज कर देगा. मोर सेल्फ अवेयर हो जाओगे. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डीलिंग विद अदर्स. बेटर हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस, कैसी भी सिचुएशन आए, किसी भी तरह का इंसान आपके सामने है, आप उसको बेटर तरह से हैंडल कर पाओगे. डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप बॉन्ड्स guaranteed. When you understand this, your bonds will be more deepened. Developing empathy, increasing productivity, because now conflicts are less in your mind. And discovering and following the inner calling, जिसे बोलते हैं पैशन या पर्पस की तरफ जाना, उसमें बहुत बड़ा हाथ है. what kind of temperament you are, or are you there or not. And the last one is, people, those who know temperaments have higher self-esteem, because they know now who I am, they know what kind of other people are. So that's where this helps. So here I am stopping my slide, because there are lots I can talk. This is my passion area, so I can talk a lot, but respecting the time. So what is my temperament? Tell me. You behavior specialists, or मेरा temperament क्या है? Peaceful. Suhasini said peaceful. Anybody else? Happy-go-lucky. Popular. Asha said popular. Okay. Anybody else? Right. Popular only. Happy-go-lucky, popular. Yes, you're right. Because now you are seeing a person who is working on his temperament for last 20 years. My original temperament, and still is, I am a peaceful, perfect. No popular, no powerful. Green t-shirt. Color. My color I am wearing. You're right. That's why I am into this field, because perfect peacefuls are born coaches. As powerful are born leaders. So this is the most suitable temperament for coaching and teaching. My temperament is what? Peaceful, perfect. But what I have worked on to balancing ourselves. जब आप इसको समझ लेते हो तो अपने आप को बैलेंस कर लेते हो आप, और तब आपके चारों टेम्परामेंट एक बैलेंस में आ जाते हैं, और आपके सामने कोई भी होता है किसी भी टेम्परामेंट का, you can deal with them effectively and with peace, right? So here I just keep my my wording here stop, and this is what I can share with you in 50, so more than 1 hour. So it is now on you. If you have any question, I am here to give you answers. How does a combination of extrovert introvert, like say perfect and popular, go together? Wouldn't there be a contradiction in themselves? Like how did? So, Shrija, आपका आंसर देने से पहले let me take the permission of Tripti ji. Yeah, please, Mahesh ji, go ahead. It's so interesting that you can talk for more time, please. Wonderful. So, Shrija, your question. Yes. एक बार और रिपीट करें, मेरा ध्यान परमिशन पे था. हाँ जी. अभी आप परफेक्ट टेम्परामेंट से पेश आए. मैं बोल रही हूँ, अगर कोई कॉम्बिनेशन हो से पॉपुलर और परफेक्ट का, तो wouldn't there be a contradiction in their behavior or something, because उनका टेम्परामेंट एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीजों का. So basically there are 3 types of combination. मैं आपसे बात नहीं कर पाया उसकी. 3 complementary 3 blends होते हैं. उसमें जो 2 blend होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं पहला blend होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल blend. वो एक्सट्रोवर्ट का blend होता है. फॉर एग्जांपल पावरफुल और पॉपुलर, ये दोनों blend जो किसी में है वो नेचुरल है, क्योंकि दोनों एक्सट्रोवर्ट हैं, दोनों को लोग चाहिए, राइट? तो ये नेचुरल blend होता है. दूसरा blend होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री blend. यानी अगर आप पावरफुल भी हो, परफेक्ट भी हो, so you are the most workaholic person in the world, the most productive people in the world. So you are now complementing, your temperament is complementing. The third temperament is called opposite temperament. Like powerful, peaceful. Like popular, perfect. अगर इनका कॉम्बिनेशन आता है कहीं पर, तो इन दोनों में से एक की मास्किंग है. This is the easiest way to find the प्रॉब्लम इन पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होती है, जो वहां पर पहचानने का इजीएस्ट वे है. अगर आपके ये दोनों टेम्परामेंट आते हैं, या किसी का भी जिसमें आता है आपका हाईएस्ट पावरफुल में आ रहा है, सेकंड हाईएस्ट पीसफुल में आ रहा है,
इट मीन्स आइदर पावरफुल इज मास्किंग और पीसफुल इज मास्किंग। तो मास्किंग क्या होती है? आपने वो टेम्परामेंट ओढ़ लिया है जो आपका है नहीं, राइट? वो किसी वजह से हो सकता है, घर की वजह से हो सकता है, सोसाइटी की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है, लेकिन इतने सालों से आपने वो टेम्परामेंट ओढ़ा हुआ है कि अब आपको समझ नहीं आता कि मैं हूं क्या। तो आप बहुत मूडी हो जाते हो। कल कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उससे पॉपुलर की तरह बात कर रहे हो, लेकिन आज कोई बात कर रहा है तो आप परफेक्ट की तरह बात कर रहे हो। उसको आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वहां पर हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है कि ये मास्किंग जो है कितनी गहरी है। यू नो, समटाइम्स मास्किंग बचपन से होती है, 10 साल के 12 साल से स्टार्ट होती है, और आज आप 50 साल के हो गए। मास्किंग इतनी गहरी होती है, तो जितनी गहरी मास्किंग उतना ज्यादा अनहैप्पीनेस आपकी लाइफ के अंदर, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग समबडी एल्सेस लाइफ। तो कब तक रबर बैंड को खींच के रखोगे आप? एक बार छोड़ना पड़ेगा। तो गिरजा, आपने पूछा था, किसने क्वेश्चन पूछा था? श्रीजा ने। सॉरी, श्रीजा। यस यस, So थैंक यू। So this is the combination. तो कॉम्बिनेशन में जब भी अगर तीसरा कॉम्बिनेशन आता है तो वी नीड प्रोफेशनल हेल्प। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, राइट? यस। Sir, I had a question that you had said the natural blend, पहला natural blend में extrovert और extroverts में together हो सकता है. So, but is it possible? I mean, because if one is more of a talker, then the other one should be a listener. This is called temperament की combination की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, आपने बोला था नेचुरल ब्लेंड। नेचुरल ब्लेंड होते हैं दोनों एक जैसे। फॉर एग्जांपल पीसफुल परफेक्ट, ये नेचुरल ब्लेंड है। पावरफुल पॉपुलर नेचुरल ब्लेंड है। ओके, पीसफुल एंड परफेक्ट। ओके, सो इट इज नॉट कनेक्टेड विद एक्सट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। नो, ये दोनों जो है ना, ये वो है जो जिसे कहते हैं जो इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट। हाँ, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ही है। फॉर एग्जांपल पहले वाले जो है दोनों एक्सट्रोवर्ट है। हाँ जी। तो दिस इज वन थिंग। जो आप बोल रहे हो उसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री ब्लेंड। अच्छा, ओके। यानी पावरफुल एक्सट्रोवर्ट, परफेक्ट इंट्रोवर्ट। ओके। इनका कॉम्बिनेशन। तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो काम करवा भी सकते हैं और काम कैसे करना है ये भी पता है। ओके, ओके सर, राइट? So they are the combination which are more productive people. Okay. Very tough people, right? Yes. The toughest of all is powerful. Okay. Yes. Any other questions? Rahul, have I answered your question? Yeah, sir. I think so. Yes, sir. I just need to go through this again. Yes, sir. It's just a starting. Yes. Anybody else? Any question? Yes, Sunita. So I just wanted to know, do circumstances change our temperament and are they permanent in nature? Why I'm asking, because due to COVID, many people, almost everyone is in the lockdown. So साल में I have seen, because I am into this field, कि बहुत सारा होता है कि लोगों में अब ज़्यादा एग्रेशन आ गया, जो शांत थे वो भी ज़्यादा गुस्सैल हो गए. So do you feel कि they do change our temperament and this change can be permanent as well? Very valid question. The thing is, temperament never changes, never ever. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। जो कहते हैं जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी बजती है। अब ये सीटी भी नहीं बच रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सीटी भी बंद कर दी है, तो ये कुकर फटने वाला है अब। तो अब ये समझ के चलें। तो ये जो चेंज दिख रहे हैं ना आपको, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, टेम्परामेंट्स की जब हम स्टडी करते हैं, लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? सबसे ज्यादा परेशान कौन है? अंडरस्टैंड कीजिए। Extroverts. Yes. Powerful and popular are like they want to jump from the building if they given choice. You know, सबसे ज्यादा खुश कौन है? पीसफुल वाले, इंट्रोवर्ट। अभी भी देखिए कितने सारे लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। बहुत से लोग कैमरा बंद कर आराम से बैठे हैं, जस्ट दे आर लिसनिंग, यू नो, एंजॉयिंग द टाइम। और उनको, और मेरे को एक इंट्रोवर्ट ने लिखा आफ्टर दिस, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारे लिए गोल्डन टाइम है, कहीं जाना नहीं है, किसी ने आना नहीं है, किसी के पास हमें फोर्स नहीं करना है, इससे बात करो, आराम से बैठो। They are the happiest people. This is all temperament. मुझे फोन आते हैं मेरे जो एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड्स हैं, यार मैं तो पागल हो गया, मैं अगर 4 दिन और रह गया ना तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अब तो वहां भी बेड नहीं है, क्या करूं? Think about this. और अब तो मैं हंसती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लाफिंग बुद्धा जैसे देख रही हूँ, बैठे देख के पक गए हैं लोग, क्या करें। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करते हैं? पीसफुल,
They are the best now. They say अपना भी कहते हैं ना अपना टाइम आएगा. ये टाइम उनका है. This is their time. So have I given you answers? Yes, sir. Amazing session. Superb. That's great. So any other question? Exactly, Indira. Yeah, thank you so much. Thank you so much for that. And we have just scratched the surface. Yeah, so I think there is a unanimous decision, and I'm taking that unanimous decision that we are inviting you again next month. Yes. और आपको आना ही है. Thank you, ma'am. आपको आना ही है. Yes. Thank you. And everybody switch on your cameras so that we can take a picture. Yeah, please, everybody switch on your cameras. We can everybody का picture नहीं आएगा. Because 50 लोगों का picture नहीं आ सकता. जितने भी आएंगे at least ऊपर आ जाएंगे, right? Absolutely. Wow. Thank you so much for this. This is आपने दिन बना दिया मेरा. Awesome. Shrija. Oh yes, I'm taking the picture. Everybody, some expression, huh? Yeah. No, let's have a reaction, everybody. Wow, everybody. Reaction. Just a sec. One. Everyone, more. come on. One, Let's two, put hearts or three. something. Yeah, true. Something. Come on, everyone. Okay. मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है कि इसका सिंबल कहाँ होता है. चलो आपके लिए सबने हार्ट लगाए हैं. Done. Wonderful. That's great. Thank you. It was a very informative, not only informative, it was like a practical session. Mahesh ji, आपने practically, but I am interested in finding out that your wife must be popular and powerful. You are right. Absolutely right. So please give us some tips how a popular and powerful person lives with a person who's perfect and peaceful. Absolutely. The perfect complementary thing. So, as you said that we'll come again, what I promise you is next time let's go a little bit deep into it. Yeah. Little bit deeper into it. Understanding each temperament in a little bit more depth so that you can understand yourself. Done. Very interesting. Done, Maheshi. And also I'm inviting everybody's spouses and everybody's parents. If you live with your parents, please invite your parents, your children, most important. Please invite your children, because I think what Maheshji is talking about, I was just going to ask Maheshji that this is such an interesting topic, especially when we study families. Very because important. you Very know, important. when you do family counseling, you need to know each person's temperament. Also, this is so applicable in offices. I mean, if you run an office, if you're an owner of a company, you have to get somebody who's a temperament expert. So the right person is put in the right department. Otherwise, you put the right person in the wrong department. You've had it, right, Maheshji? And the correct teams under the right leader. And the correct team under the absolutely, yeah. It's such a fantastic. Maheshji, I had one question. Yeah, please, Avni. The temperaments are also are they related to the body parts? Yeah. आप बहुत सारे parts में correct कर रहे हैं. So, okay, take 2 more minutes, right? Yeah, of course. Body parts. As I said, these temperaments are 4 elements. Fifth कहाँ गया? Fifth element कौन सा है? Ether. Ether is umbrella. Yes. It is what governs all the things. So हमारी body के parts में देखें, hands, mouth, mind, legs. अगर मैं 4 parts की बात करूँ, hands, जिसको हम use करते हैं helping hands. These are peaceful temperaments. Helping people, always ready to help every person. Mouth, the speaker of us is powerful temperament, popular temperament, mouth. And mind is perfect temperament, thinkers, and the legs who moves, who can take you along. Action. These are called action. These are powerful temperament. और ये सब जब इनसे ऊपर उठ जाते हैं हम, which is तृप्ति जी, I am again adding one thing. स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन क्या है टेम्परामेंट से समझें. मेडिटेशन हर एक टेम्परामेंट के लिए अलग अलग होती है. True, correct. इसीलिए आप सोचते हो कि मेडिटेशन में वो क्यों नहीं आ रहा. आप किसी पॉपुलर और पावरफुल को मेडिटेशन में बिठाओगे तो आप खुद के लिए एक वो क्रिएट कर लोगे, राइट? बिकॉज उनका मेडिटेशन का स्टाइल अलग है. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी अगर आपको टेम्परामेंट मालूम हो जाता है तो यू गो टू द स्पिरिचुअल लेवल.
सबसे पहले Correct. आपको समझना है टेम्परामेंट, देन उसको पास कर जाते हो, कहाँ पहुंच जाते हो? ईथर में। और ईथर इज, अगर आपका माइंड, हैंड्स, लेग्स और माउथ सब कुछ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, तभी आप एक इंसान हो। और वो कोऑर्डिनेशन में चलता कहाँ से है? ईथर, दैट इज गॉड और वट एवर यू कॉल इट्स एनर्जी और सोल। Perfect. So this is, we are going ahead. तो आध्यात्मिक जर्नी में ये बहुत अच्छा काम करता है when you understand everything. Yes, absolutely, absolutely. The one who is powerful requires kind of dynamic meditation rather than sitting and doing, let's say, vipassana. So yeah, I perfect, think Osho's perfect. meditation was perfect for. Perfect for them. Maximum in Osho's meditation, maximum people are powerful, popular. Correct, absolutely. So what a super layers you are opening one after the other. और मुझे लगता है हम आपको पूरा दिन भी सुन सकते हैं because you have a fantastic style of deliverance. So I think you have caught our attention completely. Thank you so much. So wonderful. So everybody, should we have Maheshi again soon? Yes, ma'am. Soon. Yes. And all of you promise me you're going to get one more person in the class, okay? Either your spouse, your child, your parent, somebody has to come in the class, because then the session can become much more interactive. Absolutely. And it can also, I mean, whatever, I mean, both of you, whoever is there with you, if that person also understands, you understand, you never know, this can be a live counseling session for everybody who's there. Absolutely. What do you say, Maheshi? Absolutely. And just if you are saying anonymously something, I'm telling you one thing. Anji. This subject, if you understand, this can go to many big lengths, right? जितने आप ले सकते हैं ना, उतना दूर तक जा सकता है। तो ये जो पहला सरफेस आपने स्केच किया है, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूं जहां तक आप जाना चाहें। तो डिसाइड फ्रॉम योरसेल्फ, आपके पास टाइम कितना है और आपको हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। आई एम ऑल योर्स। We are all the watchers here, so we have lot of time. बट इंटरेक्शन आपकी रियली में, आई एम रियली थैंकफुल, आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है, आप रियली में समझ पा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक सेकंड लेवल पे जा पाएंगे जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आई एम रियली ग्रेटफुल। Absolutely. I think Varsha ji will get in touch with you because we have a schedule that's planned for the whole month. Yeah. So we will definitely slot you down, and with your time and availability, Varsha ji can slot you definitely. Wonderful. Thank you. So wow, what a session this was. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Maheshi. Thank you, truly. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Varsha ji is not here, Thank you. but Thank I'm you so sure much. she's going to hear the recording. So Varsha ji, thank you so much for getting all of us in touch with this wonderful person. And please see to it, Varsha ji, that Mahesh ji is invited again, because Wonderful. she's not been able to join today. That's We look forward to the next session. I'm lovely. also. Thank Episode you. 2. Thank you. Thank you, Mahesh.